Obanike-ke abantu abancane. uMadongo usibazi uMadongo ukuthi ubhizi organize inkonzo enkulu ngaphandle kokwazisa mina yebo lo hlala edina la ngakho-ke ngizocela ukube khona sengisho ukuthi amanye amagama u-Ashley abe khona. kumqiniso manje ngathi ngikuthengile nomhlobiso ngithengile zonke le mpahla ngithenge emakethe ungiyeke abe awumkhisi awumkhisi hayi angihlangisela lutho nalesi mina ayingeke songishintshe umqondo. Hayi ngikwazi ngeke ngabe sithi ngiyakuthembisa. Lethe manje zokhipha iqiniso lomina. Cha impela izinto ishintsha ngempela la uyazi. Uthi useqalwani wena? Ngizocela sihlalo dabeni. Ngade ngibuka lapha emabhukweni ami ebusuku. Ngathola ukuthi udaba lendlovukazi alingakaxazululwa. Oh ya, engathi ngengezwe ngalokho. Undaba ezitha kumele ukuthi akhunjuzwe ukuthi umshado le komkhulu kwaNongoma uyasondela njengoba yena engakatholi umfazi. Hayi engathi uyangilahla ke manje. Undaba ezitha ngesikhathi kade sihlangene lapha emhlanganweni womkhandlu. Wacela ukuthi simuphe isikhathi. Namanje akakabuyeli kuthina ngalolu daba. Hayi cha angiqondile umkhulumelo undaba ezitha kodwa ngiyazi ukuthi njengamanje kunezinto eziningi ezibalekile asabhekene nazo. Indlela iyona ebalekile ukudlula konke. Yini okumele khambe phambili? Isikhathi siyahamba abantu balindile. Kulungile ngizodlulisela kumlayo. Kwenze njani? Anizungena ndlubulundela phela la uGedu semithingini. Anginandaba ngifuna ukumbona manje. Awutekekele wena. Miyeka ngene kulungile. Miyeka ngene. Okay. Sure. Wegeja. Doti Mondlo. Ngibizola ngamasho. We mama. Angenza ngalutho lubi mina. Hey we mama. Iminyaka yakhe ihambe kabi utho nongazoze izinto emsulwa la. Umtsheleni undaba ezitha. Ngimtshela uqamba bangalo yamhlobiso. Wegeja. Omkhize. Isichaza ukuthini ke yonke lento manje. Lona iqiniso lokugcina liphumile baumkhize futhi siyamazi undaba ezithi hey usazosepha ukuyidingi lana. Uzelela zonsizwa kuzelela abo bantu. Engalindeleke ukubona lapha namuhla. Hayi kanti mfundisi ngithe nje ake ngishawa umoya nje. Amen. Ngabe konke kuhle? Ubeke ukhathazekile nje. Hey hayi kona kulezi insuku akuhambi kahle impela. Ngabe yini mhlambe into ofisayo ukuthi usixoxe ngayo? Nceke ngiye ngaba nengxoxo thizeni noMadongo. Yazi nceke ungitshele kwezikabhobho angitshele emehlweni ukuthi leyo bufundisi angikhohlwe yona ayingifanele neze. Umzalwane uMadongwe i-elderly lebandla. Okuwesi mfundisi yena futhi ungihambela ngale ngemuva uorganizer inkonzo ngaphandle kokungazisa. Njani? Ayifani ke naye lento. Bengimethemba lo mzalwane ngithi ngoba ukhulile enkosini kuba bonke abantu umuntu okugcina ebengilindele ukuzwa kuye into enjena ngaye ngiphoxekile kakhulu. Okungidida tu yilokho ukuthi labantu laba kuyibona engithemba ukuthi bazongiseka bangisupport. Ngibona ke manje abangicindezelanga. Ngazuthi konke wrong enyenzayo mina. No insalela zobizo lunjalo ukubiza lula neze lineyinsalela zakhona kodwa lifuna ukuthi uqine uma isibindi ungavumi ukuphelelwa amandla ungavumi ukuthi ube discouraged kodwa ube namandla njalo okuphokophela uphikelele phambili and be courageous ukwenza lo msebenzi kaNkuluNkulu ungavumi ukudangala ungavumi ukuphelelwa amandla cha. Hayi yakuzwa kodwa kunzinyana mfundisi. Kunzima. Yabona sokwesibona ukuthi undaba ezithu zombheka kanjani emehlweni masumqhambela amanga.
Ngikutshela iqiniso. Amanga lawo. Uthenge emakethe. Amanga lawo sonke siyakwazi lokho. Anginaso isizathu singangenza ukuthi ngiqamba amanga. Wamkhisi, awukhulume nonkosikazi wakho, athi uzodlala la. Asilele simahleza la wemama. Ngami, Mamphemba. Ayingawe le ndaba. Kodwa ingamangunezi wonke. Awukhuluma iqiniso mngami. Libe nje njengoba linjalo. Yafunga baba. Wena uMantuli noma ungafunga nganoma ingane. Angikwethembi wena. Unamanga. Wena wakhetha ukuhlangana nalabo abafana. Ngekhathi bebheca indaba ezitha ngobende inyama engayidlanga. Ngikwazi kahle wena. Awuyilutho wena. Wena uyiqoki. Ngiyafana umlomo wena sitya phela sesitekwa somfana. Ufanele ukujeziswa. Hayi, wesho lipi? Umngami phela lona. Muthi ukubheca nje ukukhulume noma yikanjani. Mhloniphe ngikhona ngila. Wemkhize, phela lo mkakho le akasiyona ingelosi. Uyabona uma ungavula amehlo, uzosithola uhamba lapha emgwaqweni. Njengoba iyasi, uphila njengephara, uhamba ucela. Sholipi. Sekwaneleke manje. Ake silikeni lolu daba. Wegeja. Ngiyafisa ukuthi ngibe khona uma sebhekene nondaba ezitha. Ngivumelekile. Sihlobo, ngicela nje uningiphe umzuzwana nje wena. Kunento ebalekile engidinga ukunitshela yona. Sibuya yazi ukuthi sinenkinga Nkosi yami. Udriver wethu usekhona la ngaphandle ngeke sikwazi ukukunika umzuzwana. Asambe sihlobo. Hayi kanti ungakhathazeki ngeke nje nginimoshele isikhathi senu ukuthi kunomyalezo obalekile emele ngitshele wona. Hayi okay ungakhuluma sokulalela. Oh all right. Kahle ngiyanidinga nobabili. So ntambama siyibandla sizoba nomhlangano. Ngakho ke ngibone kubalekile ukuthi nani anibe khona. Umhlangano umayelana nalomhlangano. Ngathi nje mina njengomholi webandla ngiyangabona kubalekile ukuthi size sizohlangana siyibandla ukuze sikwazi ukulungisa istructure sebandla kanye sithole nendlela engqhubekela phambili yebandla. Hayi bo kahle bosibuku. Wazinikeke wena ngezicriptures zesonto. Hayi ngingamnaki lo sibuku. Vele wonke amasonto ayadingile ukuzana istructure. Hayi sibaleke kakhulu ngoba phela sona izosinikeza umhlahlandlela ukuthi kahle kule ndlela esihambayo sibheke ipi. Ngakho ke nani ke njengamalungu abalekile emphakathini nasebandleni cha ngibona kubalekile ukuthi hayi anize sizobani sonke. Hayi mina ke nje ngebhadi ngibhizi kabi nje ntambama ziningi izinto efanele ngizenze kodwa ngazi mhlawumbe ngizofika ngikuthembisa lutho ke kodwa. Hayi mina khuleka ungangicounter in. Ubonike madlala kanti nawe ke madongo bengakusiza ukuthi ube khona ungaphuthelwa phela. Hayibo ngiphuthelwe yini? Ke ngithi nje uzobona khona. Amen. Yeah. Hayibo. Sho ntona ngiqhamuka nje manje. Sho. Ngelimani. Ngiyabuya ngisajika la kusiwe. Hayi buya woza. Sinomhlangano. Mhlangano. Yes. Sizoshushisa unina kaSkate. Wena njengomlamo wenkosi kumele bekhona la. Sebenza wakho. Ke manje ngelimani njengoba ngikhuluma noSipho manje kumele ngihambe singikhulumile naye. Ngikwazi ukukhansela. Awuvulela lapha. Yiza. Dabezitha. Dabezitha. Niyazi bazalwane ngikhulume nje iqiniso. Endleleni lengiyihambayo njengamanje ngangazi ukusempeleni ukuthi ngiyohamba ngigcine mina lo sengumfundisi. Sibo nginombuzo nje. Bazalwane bengizocela mhlambe imibuzo sigcine nje okwamanje sigodlela ukuthi ekupheleni ke komhlangano sesingakwazi ke ukuthi siyiphendule. Amen. Bazalwane ngiphinde ngibonge okubalekile ke bazalwane njengoba sihlangene kulomhlangano iagenda yethu ime kanje sizozama la ukuthi silungise istructure sebandla ngoba isonto nesonto siyadinga ukuba nestructure. Ngakho njengoba sila sizela ukuthi sizokhetha ama-members e-exco ebandla lethu. Imake sibu ubani okunika ilungelo lokuthi ubize wonke umuntu ola uzovula umhlangano wokuthi wena ukhetha i-exco member. Ubani okubekile othe wena usuyilidi awukwazi ukuvela ulale bese uyavuka uthatha isinqumo sokuthi wena usumholi. Ngoba phela ngumholi webandla madodana.
yini ekwenza ukuthi ucabanga ukuthi wena uspecial ngaleyo ndlela ukuthi uNkulunkulu uzosijoba sonke angeqe kwaSamini akhethe wena ukuthi ube umholi ube umbulali hayibo Madonge khuzeka yini wena hayibo kahle kahle Madonge inkinga yakhe kuphi ngempela noSibu phuma kumina wena hayi ngiyabuza uthi wena uphumile wahamba ulanda imali pension ethawini fakho lokho ngase ngiyocosha izinto zasendlini nami njengalabanye abafazi bese ngase ngibona umhlobiso ke emakethe umuhle ngawuthenga nami fakho lokho ngase ngiqonde ebhasini ngabuyela ekhaya yakhe Wawusogibela ebhasini isigqoko sona Oh sengikhohliwe ngase ngithenga nesigqoko futhi khona lapho kuleyo market leyo Oy mama uyazi uqamba amanga qambela inkosi yakhe amanga kufana nokuthi uyimbela umgodi wena cabanga ukuthi yakhumbula ukuthi kwenzakalani kubiyazi kanti ke mina nawo ngiyafunga njengomlomo wenkosi mawuqamba amanga uzokubona kwabona ubiyazi angisazi ngempela ke mina ukuthi ngithini manje ngikhuluma iqiniso bakithi ngempela yazi maqhubeka uzovikela usigidi lana so thosa wena lecala lokuqhekeza lapha esigodlweni ma futhi angeke kube mnandi wena ngeza noma ngabe yini indaba eziso ufuna ukuyenza mina ngithi nje indodana yami ayinaqala mama uyabona manje siyazama ukuncenga yabo siyazama ukuncenga sikhuluma kahle nawe ufuna manje sosiphakamisa imoya manje awazi ngibeke imvubu yami uzokhuluma lo uyakhumbula samenzana ubiyazi uyafuna sikwenze kuwena lokho manje ngisengibambela imvubu yami uzokhuluma amaphaphu phansi zinyane likaNjomane hawu kona ukusabisa hayi angisabisi awusho man thema mali nomhlobisa amakhulu amabili kanje 200 rand Ngizezwa lokho lona ma bheka la ngiyakho umuntu okadayisa lo amhlobiso lona ngo200 rand man lokho lona simoshela isikhathi dlala ngakho Mantuli awukhuluma iqiniso elinjengoba linjalo cabangela amangunezi wonke hawu mfazi Ngikhuluma iqiniso usigida kahle ngenayo yonke lento mina umhlobiso ngiwuthenge emakethe enkosi yami hawu lo mfazi ayike naze nangiphoxa nivumela kanjani into enje ukuthi yenzeke la endlini yenkosi wena uhlulwa yini ukuvala umlonyana wakho into engakuphethe kahle ukhuluma egcineni kahle thula ke nje wena xoka indini thula lalelani ke mina ngizonitshela iqiniso mina lo kade ngazalelwa la ngaba ilunga lomphakathi wakhona la mina kade ngaba yilunga laleli bandla engakazalwa uSibu mina ngaze ngibulala angikaze ngintshontshe angikaze ngishisa abantu angikaze ngibambe inkunzi njengalo mgcotshwa mbumbulu oyigcobe yena bazalwane ngiyanicela sileli bandla ukuthi asibe ibandla elihlukile ke thina ibandla elingahluleli abantu ibandla elingajaji umuntu ngoba wonke umuntu njengoba sila wonke umuntu une past yakhe awumeke yini nje ephathekayo esiyibonayo osuke wayenza la emphakathini buka mina nginebusiness mina ngizele izingane ezinamagalela abonakalayo la emphakathini Madong sasekwanele manje ngicela iqiniso Sibu yakushisa iqiniso liyababa ngithi iqiniso yazi iyathusa lento ngoba phela umama wala emphakathini ohloniphekile yini lekushisa kangaka wenza lento oyenzayo ngempela ngishiswa yikona ukuthi ngumama wasemphakathini ohloniphekile ngakho ke imina umuntu ongaba umholo qotho la aniboni nini ngenkulu inhlonipho bazalwane uxolo bengizocela ukuthi mhlawumbe uma asishiye kulomhlangano ngoba kusobala ukuthi uzoxhova leli bandla kahle kahle animeni bazalwane nikhetha kuphi ukuthi niholwe isigebengu somgulukudu noma niholwe imina ngiwumama oqotho nani niyayibonela ngumama olikhulumayo iqiniso ngumama mina omayo entweni yakhe cha nje thina sinankinga nje ukukhola Pastor Sibu yebo nami ngiqinisile naye anginankinga nje yebo hayi kulungileke salani nomholi wenu ogcwele igazi labantu ezandleni zakhe salani hamba ukuthula bandleni ngixolise nje ngalo bhiqhiqhi osuke benzeka nama ngazi ukuthi usathana uqhamukapi kodwa ngicela nje ukubonga isineke senu ukuthi nibekezele ngizocela ukuthi siqhubeke kanye nento esiyizele la ukuthi sihlanganiswe yini kahle kahle bazalwane amen Dabezitha ngicela amathaphu nje nawe
Starteren. Ndaba yesisa. ये कहानी है एक बेटे की जो 20 साल बाद अपने गांव लौटा, पर जब लौटा तो वो मां जो उसके लिए हर दिन तुलसी को जल देती थी, उसने उसे पहचाना ही नहीं। कहानी शुरू होती है झारखंड का एक छोटा सा गांव सोनापुर। मिट्टी की पगडंडियां, कच्चे मकान, चौपाल की शांति और हल्की सी हवा में उड़ती धूल। इसी गांव के एक कोने में एक बूढ़ी मां माया देवी अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह उठकर तुलसी को जल देना, 2 रोटी बनाना और फिर पूरे दिन आंगन में बैठकर पुराने दिनों को याद करना। पर हर शाम जब सूरज ढलने लगता तो माया देवी की आंखें बार बार गली के छोर की ओर उठतीं। वहीं से उसका बेटा अर्जुन 20 साल पहले शहर और फिर विदेश गया था। शुरू में चिट्ठियां आईं, फिर फोन कॉल और फिर अचानक सब कुछ बंद। गांव वाले कहते, माया तेरा बेटा तुझे भूल गया, अब मत देख रास्ता। पर माया बस मुस्कुरा देती और कहती, नहीं रे, एक दिन वो आएगा, जरूर आएगा। दूसरी ओर हजारों किलोमीटर दूर दुबई की एक चमचमाती बिल्डिंग के 18वें फ्लोर पर बैठा था अर्जुन। अब एक सफल इंजीनियर, लाखों की नौकरी, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। पर उस दिन जब ऑफिस की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने नीला आसमान देखा तो उसे अचानक कुछ याद आया। मां की आवाज, बेटा शाम को लौट आना, मैं गर्म दूध रख दूंगी। उस दिन पहली बार अर्जुन की आंखें भर आईं और उसी दिन उसने टिकट बुक कर डाली वापसी की। 20 साल बाद वो अपने गांव लौट रहा था। गांव में हलचल। जब अर्जुन सोनापुर पहुंचा तब गांव थोड़ा बदल चुका था। कुछ मोबाइल टावर खड़े थे, 2 सड़कें पक्की बन गई थीं। पर उसकी मां का घर अब भी वैसा ही था। बिना किसी को बताए वो सीधे गांव की चौपाल पहुंचा और बच्चों से पूछा, माया देवी का घर कहां है? एक बच्चे ने कहा, वो तुलसी वाले आंगन में बैठती हैं। वही तो है। अर्जुन के कदम धीमे हो गए। उसने देखा एक बूढ़ी औरत, झुकी हुई कमर, सफेद बाल, सूनी आंखें, तुलसी के पास बैठी थी। मां वही थी, लेकिन बहुत बदल चुकी थी। मुलाकात पर मां ने नहीं पहचाना। अर्जुन सामने गया, आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर धीरे से कहा, मां मैं अर्जुन हूं। माया देवी ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा हंसी। अर्जुन? मेरा बेटा अर्जुन तो दुबला पतला था, तेरी तरह अमीर और भारी शरीर वाला नहीं। तू तो कोई अच्छा आदमी लगता है, पर अर्जुन नहीं हो सकता। अर्जुन सन्न रह गया। उसने मां के पैर छुए, आंखों से आंसू बह निकले। मां ये देखो मेरी कलाई, ये वही रक्षा धागा है जो तुमने बांधा था, याद है? माया देवी ने ध्यान से देखा, फिर कुछ याद करते हुए रुक गई, पर सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बेटा, अर्जुन अब नहीं आएगा। वो तो मुझे छोड़कर चला गया। भय और दर्द। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसकी अपनी मां उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो रात अर्जुन ने गांव के एक पुराने दोस्त राजू के घर गुजारी। राजू ने बताया, भाई जब तू गया था मां रोज तेरा इंतजार करती थी, लेकिन जब सालों तक न कोई चिट्ठी आई न फोन, तो वो धीरे धीरे चुप होती गई। अब वो भूलने लगी है, शायद अल्जाइमर्स जैसा कुछ है। अर्जुन टूट गया। फिर शुरू हुआ प्रयास। अर्जुन ने अगले दिन मां को रोज की तरह नाश्ता दिया। उसे पुराने किस्से सुनाने लगा। मां याद है हम अमरूद के पेड़ से गिर गए थे? मां याद है पापा ने मुझे पहली बार स्कूल छोड़ा था? धीरे धीरे कुछ कुछ बातों पर मां मुस्कुराने लगी, लेकिन अब भी कहती, तू अच्छा है बेटा, पर मेरा अर्जुन नहीं है। फोटो, मिठाई, झूला और चिट्ठियां। अर्जुन ने घर में पड़ा एक पुराना ट्रंक निकाला। उसमें थी मां की पुरानी चिट्ठियां, अर्जुन की स्कूल की फोटो, पापा का चश्मा। अर्जुन ने मां को वो चिट्ठियां दी। मां धीरे धीरे पढ़ने लगी और एकदम ठहर गई। एक चिट्ठी में लिखा था, मां मैं बहुत जल्द आऊंगा, तब तक मेरे लिए खीर मत बनाना, मैं आकर खाऊंगा। माया की आंखों से आंसू निकल पड़े। पहचान और टूट जाना। अर्जुन ने आखिरी कोशिश की। मां को वहीं ले गया जहां उन्होंने अर्जुन को पहली बार स्कूल भेजा था। वहां जाकर अर्जुन ने वही बात दोहराई, मां मैं डर रहा हूं, तुम दरवाजे पर खड़ी रहना,
जब तक मैं लौट न आऊं। मां के कानों में कुछ गूंजा। उसने अर्जुन को देखा, लंबे समय तक देखा और फिर धीरे से कहा, अर्जुन बेटा, तू आ गया, तू सच में आ गया। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे नहीं पहचान पाई। दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। कहानी का अंत भावनात्मक मोड़। अर्जुन ने गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल बनवाया जिसका नाम रखा माया मेमोरियल क्लिनिक। मां अब हर दिन मंदिर जाती और लोगों को बताती, मेरा अर्जुन दूर गया था लेकिन फिर लौट आया। मां का प्यार कभी दूर नहीं होता। अंतिम शब्द, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग आपका इंतजार कर रहा हो तो लौट आइए, क्योंकि वक्त और मां दोनों कभी दोबारा नहीं मिलते। ये कहानी है एक बेटे की जो 20 साल बाद अपने गांव लौटा, पर जब लौटा तो वो मां जो उसके लिए हर दिन तुलसी को जल देती थी, उसने उसे पहचाना ही नहीं। कहानी शुरू होती है झारखंड का एक छोटा सा गांव सोनापुर। मिट्टी की पगडंडियां, कच्चे मकान, चौपाल की शांति और हल्की सी हवा में उड़ती धूल। इसी गांव के एक कोने में एक बूढ़ी मां माया देवी अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह उठकर तुलसी को जल देना, 2 रोटी बनाना और फिर पूरे दिन आंगन में बैठकर पुराने दिनों को याद करना। पर हर शाम जब सूरज ढलने लगता तो माया देवी की आंखें बार बार गली के छोर की ओर उठतीं। वहीं से उसका बेटा अर्जुन 20 साल पहले शहर और फिर विदेश गया था। शुरू में चिट्ठियां आईं, फिर फोन कॉल और फिर अचानक सब कुछ बंद। गांव वाले कहते, माया तेरा बेटा तुझे भूल गया, अब मत देख रास्ता। पर माया बस मुस्कुरा देती और कहती, नहीं रे, एक दिन वो आएगा, जरूर आएगा। दूसरी ओर हजारों किलोमीटर दूर दुबई की एक चमचमाती बिल्डिंग के 18वें फ्लोर पर बैठा था अर्जुन। अब एक सफल इंजीनियर, लाखों की नौकरी, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। पर उस दिन जब ऑफिस की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने नीला आसमान देखा तो उसे अचानक कुछ याद आया। मां की आवाज, बेटा शाम को लौट आना, मैं गर्म दूध रख दूंगी। उस दिन पहली बार अर्जुन की आंखें भर आईं और उसी दिन उसने टिकट बुक कर डाली वापसी की। 20 साल बाद वो अपने गांव लौट रहा था। गांव में हलचल। जब अर्जुन सोनापुर पहुंचा तब गांव थोड़ा बदल चुका था। कुछ मोबाइल टावर खड़े थे, 2 सड़कें पक्की बन गई थीं, पर उसकी मां का घर अब भी वैसा ही था। बिना किसी को बताए वो सीधे गांव की चौपाल पहुंचा और बच्चों से पूछा, माया देवी का घर कहाँ है? एक बच्चे ने कहा, वो तुलसी वाले आंगन में बैठती हैं। वही तो है। अर्जुन के कदम धीमे हो गए। उसने देखा एक बूढ़ी औरत, झुकी हुई कमर, सफेद बाल, सूनी आंखें, तुलसी के पास बैठी थी। मां वही थी, लेकिन बहुत बदल चुकी थी। मुलाकात पर मां ने नहीं पहचाना। अर्जुन सामने गया, आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर धीरे से कहा, मां मैं अर्जुन हूं। माया देवी ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा हंसी। अर्जुन? मेरा बेटा अर्जुन तो दुबला पतला था, तेरी तरह अमीर और भारी शरीर वाला नहीं। तू तो कोई अच्छा आदमी लगता है, पर अर्जुन नहीं हो सकता। अर्जुन सन्न रह गया। उसने मां के पैर छुए, आंखों से आंसू बह निकले। मां, ये देखो मेरी कलाई, ये वही रक्षा धागा है जो तुमने बांधा था, याद है? माया देवी ने ध्यान से देखा, फिर कुछ याद करते हुए रुक गई, पर सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बेटा, अर्जुन अब नहीं आएगा। वो तो मुझे छोड़कर चला गया। भय और दर्द। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसकी अपनी मां उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो रात अर्जुन ने गांव के एक पुराने दोस्त राजू के घर गुजारी। राजू ने बताया, भाई जब तू गया था मां रोज तेरा इंतजार करती थी, लेकिन जब सालों तक न कोई चिट्ठी आई न फोन, तो वो धीरे धीरे चुप होती गई। अब वो भूलने लगी है, शायद अल्जाइमर्स जैसा कुछ है। अर्जुन टूट गया। फिर शुरू हुआ प्रयास। अर्जुन ने अगले दिन मां को रोज की तरह नाश्ता दिया। उसे पुराने किस्से सुनाने लगा। मां, याद है हम अमरूद के पेड़ से गिर गए थे? मां, याद है पापा ने मुझे पहली बार स्कूल छोड़ा था? धीरे धीरे कुछ कुछ बातों पर मां मुस्कुराने लगी, लेकिन अब भी कहती, तू अच्छा है बेटा, पर मेरा अर्जुन नहीं है।
फोटो, मिठाई, झूला और चिट्ठियां। अर्जुन ने घर में पड़ा एक पुराना ट्रंक निकाला। उसमें थी माँ की पुरानी चिट्ठियां, अर्जुन की स्कूल की फोटो, पापा का चश्मा। अर्जुन ने माँ को वो चिट्ठियां दी। माँ धीरे धीरे पढ़ने लगी और एकदम ठहर गई। एक चिट्ठी में लिखा था, माँ मैं बहुत जल्द आऊंगा, तब तक मेरे लिए खीर मत बनाना, मैं आकर खाऊंगा। माया की आंखों से आंसू निकल पड़े। पहचान और टूट जाना। अर्जुन ने आखिरी कोशिश की। माँ को वहीं ले गया जहां उन्होंने अर्जुन को पहली बार स्कूल भेजा था। वहां जाकर अर्जुन ने वही बात दोहराई, माँ मैं डर रहा हूं, तुम दरवाजे पर खड़ी रहना जब तक मैं लौट ना आऊं। माँ के कानों में कुछ गूंजा। उसने अर्जुन को देखा, लंबे समय तक देखा और फिर धीरे से कहा, अर्जुन बेटा तू आ गया, तू सच में आ गया, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे नहीं पहचान पाई। दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। कहानी का अंत भावनात्मक मोड़। अर्जुन ने गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल बनवाया जिसका नाम रखा माया मेमोरियल क्लिनिक। मां अब हर दिन मंदिर जाती और लोगों को बताती, मेरा अर्जुन दूर गया था लेकिन फिर लौट आया। मां का प्यार कभी दूर नहीं होता। अंतिम शब्द, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग आपका इंतजार कर रहा हो तो लौट आइए, क्योंकि वक्त और मां दोनों कभी दोबारा नहीं मिलते। ये कहानी है एक बेटे की जो 20 साल बाद अपने गांव लौटा, पर जब लौटा तो वो मां जो उसके लिए हर दिन तुलसी को जल देती थी, उसने उसे पहचाना ही नहीं। कहानी शुरू होती है झारखंड का एक छोटा सा गांव सोनापुर। मिट्टी की पगडंडियां, कच्चे मकान, चौपाल की शांति और हल्की सी हवा में उड़ती धूल। इसी गांव के एक कोने में एक बूढ़ी मां माया देवी अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह उठकर तुलसी को जल देना, 2 रोटी बनाना और फिर पूरे दिन आंगन में बैठकर पुराने दिनों को याद करना। पर हर शाम जब सूरज ढलने लगता तो माया देवी की आंखें बार बार गली के छोर की ओर उठतीं। वहीं से उसका बेटा अर्जुन 20 साल पहले शहर और फिर विदेश गया था। शुरू में चिट्ठियां आईं, फिर फोन कॉल और फिर अचानक सब कुछ बंद। गांव वाले कहते, माया तेरा बेटा तुझे भूल गया, अब मत देख रास्ता। पर माया बस मुस्कुरा देती और कहती, नहीं रे, एक दिन वो आएगा, जरूर आएगा। दूसरी ओर हजारों किलोमीटर दूर दुबई की एक चमचमाती बिल्डिंग के 18वें फ्लोर पर बैठा था अर्जुन। अब एक सफल इंजीनियर, लाखों की नौकरी, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। पर उस दिन जब ऑफिस की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने नीला आसमान देखा तो उसे अचानक कुछ याद आया। मां की आवाज, बेटा शाम को लौट आना, मैं गर्म दूध रख दूंगी। उस दिन पहली बार अर्जुन की आंखें भर आईं और उसी दिन उसने टिकट बुक कर डाली वापसी की। 20 साल बाद वो अपने गांव लौट रहा था। गांव में हलचल। जब अर्जुन सोनापुर पहुंचा तब गांव थोड़ा बदल चुका था। कुछ मोबाइल टावर खड़े थे, 2 सड़कें पक्की बन गई थीं, पर उसकी मां का घर अब भी वैसा ही था। बिना किसी को बताए वो सीधे गांव की चौपाल पहुंचा और बच्चों से पूछा, माया देवी का घर कहां है? एक बच्चे ने कहा, वो तुलसी वाले आंगन में बैठती हैं। वही तो हैं। अर्जुन के कदम धीमे हो गए। उसने देखा एक बूढ़ी औरत, झुकी हुई कमर, सफेद बाल, सूनी आंखें, तुलसी के पास बैठी थी। मां वही थी, लेकिन बहुत बदल चुकी थी। मुलाकात पर मां ने नहीं पहचाना। अर्जुन सामने गया, आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर धीरे से कहा, मां मैं अर्जुन हूं। माया देवी ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा हंसी। अर्जुन? मेरा बेटा अर्जुन तो दुबला पतला था, तेरी तरह अमीर और भारी शरीर वाला नहीं। तू तो कोई अच्छा आदमी लगता है, पर अर्जुन नहीं हो सकता। अर्जुन सन्न रह गया। उसने मां के पैर छुए, आंखों से आंसू बह निकले। मां ये देखो मेरी कलाई, ये वही रक्षा धागा है जो तुमने बांधा था, याद है? माया देवी ने ध्यान से देखा, फिर कुछ याद करते हुए रुक गई, पर सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बेटा, अर्जुन अब नहीं आएगा। वो तो मुझे छोड़कर चला गया। भय और दर्द। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसकी अपनी मां उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो रात अर्जुन ने गांव के एक पुराने दोस्त राजू के घर गुजारी।
राजू ने बताया, भाई जब तू गया था माँ रोज तेरा इंतजार करती थी, लेकिन जब सालों तक न कोई चिट्ठी आई न फोन, तो वो धीरे धीरे चुप होती गई। अब वो भूलने लगी है, शायद अल्जाइमर्स जैसा कुछ है। अर्जुन टूट गया। फिर शुरू हुआ प्रयास। अर्जुन ने अगले दिन माँ को रोज की तरह नाश्ता दिया। उसे पुराने किस्से सुनाने लगा। माँ, याद है हम अमरूद के पेड़ से गिर गए थे। माँ, याद है पापा ने मुझे पहली बार स्कूल छोड़ा था। धीरे धीरे कुछ कुछ बातों पर माँ मुस्कुराने लगी, लेकिन अब भी कहती, तू अच्छा है बेटा, पर मेरा अर्जुन नहीं है। फोटो, मिठाई, झूला और चिट्ठियां। अर्जुन ने घर में पड़ा एक पुराना ट्रंक निकाला। उसमें थी माँ की पुरानी चिट्ठियां, अर्जुन की स्कूल की फोटो, पापा का चश्मा। अर्जुन ने माँ को वो चिट्ठियां दी। माँ धीरे धीरे पढ़ने लगी और एकदम ठहर गई। एक चिट्ठी में लिखा था, माँ मैं बहुत जल्द आऊंगा, तब तक मेरे लिए खीर मत बनाना, मैं आकर खाऊंगा। माया की आंखों से आंसू निकल पड़े। पहचान और टूट जाना। अर्जुन ने आखिरी कोशिश की। माँ को वहीं ले गया जहां उन्होंने अर्जुन को पहली बार स्कूल भेजा था। वहां जाकर अर्जुन ने वही बात दोहराई, माँ मैं डर रहा हूं, तुम दरवाजे पर खड़ी रहना जब तक मैं लौट ना आऊं। माँ के कानों में कुछ गूंजा। उसने अर्जुन को देखा, लंबे समय तक देखा और फिर धीरे से कहा, अर्जुन बेटा तू आ गया, तू सच में आ गया, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे नहीं पहचान पाई। दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। कहानी का अंत भावनात्मक मोड़। अर्जुन ने गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल बनवाया जिसका नाम रखा माया मेमोरियल क्लिनिक। मां अब हर दिन मंदिर जाती और लोगों को बताती, मेरा अर्जुन दूर गया था लेकिन फिर लौट आया। मां का प्यार कभी दूर नहीं होता। अंतिम शब्द, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग आपका इंतजार कर रहा हो तो लौट आइए, क्योंकि वक्त और मां दोनों कभी दोबारा नहीं मिलते। ये कहानी है एक बेटे की जो 20 साल बाद अपने गांव लौटा, पर जब लौटा तो वो मां जो उसके लिए हर दिन तुलसी को जल देती थी, उसने उसे पहचाना ही नहीं। कहानी शुरू होती है झारखंड का एक छोटा सा गांव सोनापुर। मिट्टी की पगडंडियां, कच्चे मकान, चौपाल की शांति और हल्की सी हवा में उड़ती धूल। इसी गांव के एक कोने में एक बूढ़ी मां माया देवी अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह उठकर तुलसी को जल देना, 2 रोटी बनाना और फिर पूरे दिन आंगन में बैठकर पुराने दिनों को याद करना। पर हर शाम जब सूरज ढलने लगता तो माया देवी की आंखें बार बार गली के छोर की ओर उठतीं। वहीं से उसका बेटा अर्जुन 20 साल पहले शहर और फिर विदेश गया था। शुरू में चिट्ठियां आईं, फिर फोन कॉल और फिर अचानक सब कुछ बंद। गांव वाले कहते, माया तेरा बेटा तुझे भूल गया, अब मत देख रास्ता। पर माया बस मुस्कुरा देती और कहती, नहीं रे, एक दिन वो आएगा, जरूर आएगा। दूसरी ओर हजारों किलोमीटर दूर दुबई की एक चमचमाती बिल्डिंग के 18वें फ्लोर पर बैठा था अर्जुन। अब एक सफल इंजीनियर, लाखों की नौकरी, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। पर उस दिन जब ऑफिस की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने नीला आसमान देखा तो उसे अचानक कुछ याद आया। मां की आवाज, बेटा शाम को लौट आना, मैं गर्म दूध रख दूंगी। उस दिन पहली बार अर्जुन की आंखें भर आईं और उसी दिन उसने टिकट बुक कर डाली वापसी की। 20 साल बाद वो अपने गांव लौट रहा था। गांव में हलचल। जब अर्जुन सोनापुर पहुंचा तब गांव थोड़ा बदल चुका था। कुछ मोबाइल टावर खड़े थे, 2 सड़कें पक्की बन गई थीं, पर उसकी मां का घर अब भी वैसा ही था। बिना किसी को बताए वो सीधे गांव की चौपाल पहुंचा और बच्चों से पूछा, माया देवी का घर कहां है? एक बच्चे ने कहा, वो तुलसी वाले आंगन में बैठती हैं। वही तो है। अर्जुन के कदम धीमे हो गए। उसने देखा एक बूढ़ी औरत, झुकी हुई कमर, सफेद बाल, सूनी आंखें, तुलसी के पास बैठी थी। मां वही थी, लेकिन बहुत बदल चुकी थी। मुलाकात पर मां ने नहीं पहचाना। अर्जुन सामने गया, आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर धीरे से कहा, मां मैं अर्जुन हूं। माया देवी ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा हंसी। अर्जुन? मेरा बेटा अर्जुन तो दुबला पतला था,
तेरी तरह अमीर और भारी शरीर वाला नहीं। तू तो कोई अच्छा आदमी लगता है, पर अर्जुन नहीं हो सकता। अर्जुन सन्न रह गया। उसने मां के पैर छुए, आंखों से आंसू बह निकले। मां, ये देखो मेरी कलाई, ये वही रक्षा धागा है जो तुमने बांधा था, याद है? माया देवी ने ध्यान से देखा, फिर कुछ याद करते हुए रुक गई, पर सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बेटा, अर्जुन अब नहीं आएगा। वो तो मुझे छोड़कर चला गया। भय और दर्द, अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसकी अपनी मां उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो रात अर्जुन ने गांव के एक पुराने दोस्त राजू के घर गुजारी। राजू ने बताया, भाई, जब तू गया था मां रोज तेरा इंतजार करती थी, लेकिन जब सालों तक न कोई चिट्ठी आई न फोन, तो वो धीरे धीरे चुप होती गई। अब वो भूलने लगी है, शायद अल्जाइमर्स जैसा कुछ है। अर्जुन टूट गया। फिर शुरू हुआ प्रयास। अर्जुन ने अगले दिन मां को रोज की तरह नाश्ता दिया। उसे पुराने किस्से सुनाने लगा। मां, याद है हम अमरूद के पेड़ से गिर गए थे? मां, याद है पापा ने मुझे पहली बार स्कूल छोड़ा था? धीरे धीरे कुछ कुछ बातों पर मां मुस्कुराने लगी, लेकिन अब भी कहती, तू अच्छा है बेटा, पर मेरा अर्जुन नहीं है। फोटो, मिठाई, झूला और चिट्ठियां। अर्जुन ने घर में पड़ा एक पुराना ट्रंक निकाला। उसमें थी मां की पुरानी चिट्ठियां, अर्जुन की स्कूल की फोटो, पापा का चश्मा। अर्जुन ने मां को वो चिट्ठियां दी। मां धीरे धीरे पढ़ने लगी और एकदम ठहर गई। एक चिट्ठी में लिखा था, मां, मैं बहुत जल्द आऊंगा, तब तक मेरे लिए खीर मत बनाना, मैं आकर खाऊंगा। माया की आंखों से आंसू निकल पड़े। पहचान और टूट जाना। अर्जुन ने आखिरी कोशिश की। मां को वहीं ले गया जहां उन्होंने अर्जुन को पहली बार स्कूल भेजा था। वहां जाकर अर्जुन ने वही बात दोहराई, मां, मैं डर रहा हूं, तुम दरवाजे पर खड़ी रहना जब तक मैं लौट ना आऊं। मां के कानों में कुछ गूंजा। उसने अर्जुन को देखा, लंबे समय तक देखा, और फिर धीरे से कहा, अर्जुन बेटा, तू आ गया, तू सच में आ गया। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे नहीं पहचान पाई। दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। कहानी का अंत भावनात्मक मोड़। अर्जुन ने गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल बनवाया, जिसका नाम रखा माया मेमोरियल क्लिनिक। मां अब हर दिन मंदिर जाती और लोगों को बताती, मेरा अर्जुन दूर गया था लेकिन फिर लौट आया। मां का प्यार कभी दूर नहीं होता। अंतिम शब्द, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग आपका इंतजार कर रहा हो तो लौट आइए, क्योंकि वक्त और मां दोनों कभी दोबारा नहीं मिलते। ये कहानी है एक बेटे की जो 20 साल बाद अपने गांव लौटा, पर जब लौटा तो वो मां जो उसके लिए हर दिन तुलसी को जल देती थी, उसने उसे पहचाना ही नहीं। कहानी शुरू होती है झारखंड का एक छोटा सा गांव सोनापुर। मिट्टी की पगडंडियां, कच्चे मकान, चौपाल की शांति और हल्की सी हवा में उड़ती धूल। इसी गांव के एक कोने में एक बूढ़ी मां माया देवी अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह उठकर तुलसी को जल देना, 2 रोटी बनाना और फिर पूरे दिन आंगन में बैठकर पुराने दिनों को याद करना। पर हर शाम जब सूरज ढलने लगता तो माया देवी की आंखें बार बार गली के छोर की ओर उठतीं। वहीं से उसका बेटा अर्जुन 20 साल पहले शहर और फिर विदेश गया था। शुरू में चिट्ठियां आईं, फिर फोन कॉल, और फिर अचानक सब कुछ बंद। गांव वाले कहते, माया तेरा बेटा तुझे भूल गया, अब मत देख रास्ता। पर माया बस मुस्कुरा देती और कहती, नहीं रे, एक दिन वो आएगा, जरूर आएगा। दूसरी ओर हजारों किलोमीटर दूर दुबई की एक चमचमाती बिल्डिंग के 18वें फ्लोर पर बैठा था अर्जुन। अब एक सफल इंजीनियर, लाखों की नौकरी, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। पर उस दिन जब ऑफिस की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने नीला आसमान देखा तो उसे अचानक कुछ याद आया। मां की आवाज, बेटा शाम को लौट आना, मैं गर्म दूध रख दूंगी। उस दिन पहली बार अर्जुन की आंखें भर आईं और उसी दिन उसने टिकट बुक कर डाली वापसी की। 20 साल बाद वो अपने गांव लौट रहा था। गांव में हलचल। जब अर्जुन सोनापुर पहुंचा तब गांव थोड़ा बदल चुका था। कुछ मोबाइल टावर खड़े थे, 2 सड़कें पक्की बन गई थीं, पर उसकी मां का घर अब भी वैसा ही था। बिना किसी को बताए
वो सीधे गांव की चौपाल पहुंचा और बच्चों से पूछा, माया देवी का घर कहाँ है? एक बच्चे ने कहा, वो तुलसी वाले आंगन में बैठती हैं। वही तो हैं। अर्जुन के कदम धीमे हो गए। उसने देखा एक बूढ़ी औरत, झुकी हुई कमर, सफेद बाल, सूनी आंखें, तुलसी के पास बैठी थी। मां वही थी, लेकिन बहुत बदल चुकी थी। मुलाकात पर मां ने नहीं पहचाना। अर्जुन सामने गया, आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर धीरे से कहा, मां मैं अर्जुन हूं। माया देवी ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा हंसी। अर्जुन? मेरा बेटा अर्जुन तो दुबला पतला था, तेरी तरह अमीर और भारी शरीर वाला नहीं। तू तो कोई अच्छा आदमी लगता है, पर अर्जुन नहीं हो सकता। अर्जुन सन्न रह गया। उसने मां के पैर छुए, आंखों से आंसू बह निकले। मां, ये देखो मेरी कलाई, ये वही रक्षा धागा है जो तुमने बांधा था, याद है? माया देवी ने ध्यान से देखा, फिर कुछ याद करते हुए रुक गई, पर सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बेटा, अर्जुन अब नहीं आएगा। वो तो मुझे छोड़कर चला गया। भय और दर्द। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसकी अपनी मां उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो रात अर्जुन ने गांव के एक पुराने दोस्त राजू के घर गुजारी। राजू ने बताया, भाई जब तू गया था मां रोज तेरा इंतजार करती थी, लेकिन जब सालों तक न कोई चिट्ठी आई न फोन, तो वो धीरे धीरे चुप होती गई। अब वो भूलने लगी है, शायद अल्जाइमर्स जैसा कुछ है। अर्जुन टूट गया। फिर शुरू हुआ प्रयास। अर्जुन ने अगले दिन मां को रोज की तरह नाश्ता दिया। उसे पुराने किस्से सुनाने लगा। मां, याद है हम अमरूद के पेड़ से गिर गए थे? मां, याद है पापा ने मुझे पहली बार स्कूल छोड़ा था? धीरे धीरे कुछ कुछ बातों पर मां मुस्कुराने लगी, लेकिन अब भी कहती, तू अच्छा है बेटा, पर मेरा अर्जुन नहीं है। फोटो, मिठाई, झूला और चिट्ठियां। अर्जुन ने घर में पड़ा एक पुराना ट्रंक निकाला। उसमें थी मां की पुरानी चिट्ठियां, अर्जुन की स्कूल की फोटो, पापा का चश्मा। अर्जुन ने मां को वो चिट्ठियां दी। मां धीरे धीरे पढ़ने लगी और एकदम ठहर गई। एक चिट्ठी में लिखा था, मां मैं बहुत जल्द आऊंगा, तब तक मेरे लिए खीर मत बनाना, मैं आकर खाऊंगा। माया की आंखों से आंसू निकल पड़े। पहचान और टूट जाना। अर्जुन ने आखिरी कोशिश की। मां को वहीं ले गया जहां उन्होंने अर्जुन को पहली बार स्कूल भेजा था। वहां जाकर अर्जुन ने वही बात दोहराई, मां मैं डर रहा हूं, तुम दरवाजे पर खड़ी रहना जब तक मैं लौट ना आऊं। मां के कानों में कुछ गूंजा। उसने अर्जुन को देखा, लंबे समय तक देखा, और फिर धीरे से कहा, अर्जुन बेटा तू आ गया, तू सच में आ गया। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे नहीं पहचान पाई। दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। कहानी का अंत भावनात्मक मोड़। अर्जुन ने गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल बनवाया, जिसका नाम रखा माया मेमोरियल क्लिनिक। मां अब हर दिन मंदिर जाती और लोगों को बताती, मेरा अर्जुन दूर गया था लेकिन फिर लौट आया। मां का प्यार कभी दूर नहीं होता। अंतिम शब्द, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग आपका इंतजार कर रहा हो तो लौट आइए, क्योंकि वक्त और मां दोनों कभी दोबारा नहीं मिलते। ये कहानी है एक बेटे की जो 20 साल बाद अपने गांव लौटा, पर जब लौटा तो वो मां जो उसके लिए हर दिन तुलसी को जल देती थी, उसने उसे पहचाना ही नहीं। कहानी शुरू होती है झारखंड का एक छोटा सा गांव सोनापुर। मिट्टी की पगडंडियां, कच्चे मकान, चौपाल की शांति और हल्की सी हवा में उड़ती धूल। इसी गांव के एक कोने में एक बूढ़ी मां माया देवी अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह उठकर तुलसी को जल देना, 2 रोटी बनाना और फिर पूरे दिन आंगन में बैठकर पुराने दिनों को याद करना। पर हर शाम जब सूरज ढलने लगता तो माया देवी की आंखें बार बार गली के छोर की ओर उठतीं। वहीं से उसका बेटा अर्जुन 20 साल पहले शहर और फिर विदेश गया था। शुरू में चिट्ठियां आईं, फिर फोन कॉल, और फिर अचानक सब कुछ बंद। गांव वाले कहते, माया तेरा बेटा तुझे भूल गया, अब मत देख रास्ता। पर माया बस मुस्कुरा देती और कहती, नहीं रे, एक दिन वो आएगा, जरूर आएगा। दूसरी ओर हजारों किलोमीटर दूर दुबई की एक चमचमाती बिल्डिंग के 18वें फ्लोर पर बैठा था अर्जुन।
अब एक सफल इंजीनियर, लाखों की नौकरी, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। पर उस दिन जब ऑफिस की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने नीला आसमान देखा तो उसे अचानक कुछ याद आया। मां की आवाज, बेटा शाम को लौट आना, मैं गर्म दूध रख दूंगी। उस दिन पहली बार अर्जुन की आंखें भर आईं और उसी दिन उसने टिकट बुक कर डाली वापसी की। 20 साल बाद वो अपने गांव लौट रहा था। गांव में हलचल। जब अर्जुन सोनापुर पहुंचा तब गांव थोड़ा बदल चुका था। कुछ मोबाइल टावर खड़े थे, 2 सड़कें पक्की बन गई थीं, पर उसकी मां का घर अब भी वैसा ही था। बिना किसी को बताए वो सीधे गांव की चौपाल पहुंचा और बच्चों से पूछा, माया देवी का घर कहां है? एक बच्चे ने कहा, वो तुलसी वाले आंगन में बैठती हैं। वही तो है। अर्जुन के कदम धीमे हो गए। उसने देखा एक बूढ़ी औरत, झुकी हुई कमर, सफेद बाल, सूनी आंखें, तुलसी के पास बैठी थी। मां वही थी, लेकिन बहुत बदल चुकी थी। मुलाकात पर मां ने नहीं पहचाना। अर्जुन सामने गया, आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर धीरे से कहा, मां मैं अर्जुन हूं। माया देवी ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा हंसी। अर्जुन? मेरा बेटा अर्जुन तो दुबला पतला था, तेरी तरह अमीर और भारी शरीर वाला नहीं। तू तो कोई अच्छा आदमी लगता है, पर अर्जुन नहीं हो सकता। अर्जुन सन्न रह गया। उसने मां के पैर छुए, आंखों से आंसू बह निकले। मां ये देखो मेरी कलाई, ये वही रक्षा धागा है जो तुमने बांधा था, याद है? माया देवी ने ध्यान से देखा, फिर कुछ याद करते हुए रुक गई, पर सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बेटा, अर्जुन अब नहीं आएगा। वो तो मुझे छोड़कर चला गया। भय और दर्द। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसकी अपनी मां उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो रात अर्जुन ने गांव के एक पुराने दोस्त राजू के घर गुजारी। राजू ने बताया, भाई जब तू गया था मां रोज तेरा इंतजार करती थी, लेकिन जब सालों तक न कोई चिट्ठी आई न फोन, तो वो धीरे धीरे चुप होती गई। अब वो भूलने लगी है, शायद अल्जाइमर्स जैसा कुछ है। अर्जुन टूट गया। फिर शुरू हुआ प्रयास। अर्जुन ने अगले दिन मां को रोज की तरह नाश्ता दिया। उसे पुराने किस्से सुनाने लगा। मां याद है हम अमरूद के पेड़ से गिर गए थे? मां याद है पापा ने मुझे पहली बार स्कूल छोड़ा था? धीरे धीरे कुछ कुछ बातों पर मां मुस्कुराने लगी, लेकिन अब भी कहती, तू अच्छा है बेटा, पर मेरा अर्जुन नहीं है। फोटो, मिठाई, झूला और चिट्ठियां। अर्जुन ने घर में पड़ा एक पुराना ट्रंक निकाला। उसमें थी मां की पुरानी चिट्ठियां, अर्जुन की स्कूल की फोटो, पापा का चश्मा। अर्जुन ने मां को वो चिट्ठियां दी। मां धीरे धीरे पढ़ने लगी और एकदम ठहर गई। एक चिट्ठी में लिखा था, मां मैं बहुत जल्द आऊंगा, तब तक मेरे लिए खीर मत बनाना, मैं आकर खाऊंगा। माया की आंखों से आंसू निकल पड़े। पहचान और टूट जाना। अर्जुन ने आखिरी कोशिश की। मां को वहीं ले गया जहां उन्होंने अर्जुन को पहली बार स्कूल भेजा था। वहां जाकर अर्जुन ने वही बात दोहराई, मां मैं डर रहा हूं, तुम दरवाजे पर खड़ी रहना जब तक मैं लौट ना आऊं। मां के कानों में कुछ गूंजा। उसने अर्जुन को देखा, लंबे समय तक देखा, और फिर धीरे से कहा, अर्जुन बेटा तू आ गया, तू सच में आ गया। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे नहीं पहचान पाई। दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। कहानी का अंत भावनात्मक मोड़। अर्जुन ने गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल बनवाया, जिसका नाम रखा माया मेमोरियल क्लिनिक। मां अब हर दिन मंदिर जाती और लोगों को बताती, मेरा अर्जुन दूर गया था लेकिन फिर लौट आया। मां का प्यार कभी दूर नहीं होता। अंतिम शब्द, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग आपका इंतजार कर रहा हो तो लौट आइए, क्योंकि वक्त और मां दोनों कभी दोबारा नहीं मिलते।